Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 2nd July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about Assamese as a compulsory language in Assam. And the ideas discussed here are important from our syllabus paper 6 Assam polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखो, एक बात तो पहले भी हमने ये आर्टिकल कवर की थी जहां आपको मैंने बताया था दैट द गवर्नमेंट ऑफ असम इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ प्रोमलगेटिंग ए लॉ, एक कानून बनाने वाली है, and already this law has been given formal assent or approval by the state governor also. और इस कानून के हिसाब से Assamese language will be now compulsory in all schools of Assam, may it be private or public school, including Kendriya Vidyalaya of Assam for classes 1 to 10. तो जो भी स्टूडेंट्स होंगे असम के अंदर, चाहे वो पब्लिक स्कूल के हों या प्राइवेट स्कूल के हों, इवन केंद्रीय विद्यालय के हों, उन सबको फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक Assamese लैंग्वेज पढ़ना होगा. And this decision has been now approved by the governor of Assam as well. This is cabinet's decision which has been approved. So that means it will be now applicable. There are some exceptions as well. For example, this law will not be applicable in Barak Valley, Bodoland Council areas and other 6 scheduled areas. So these are some 6 scheduled areas of Assam like Dima Hasao Autonomous Council, Karbi Anglong and Bodoland Territorial Council. In these areas, this provision of the government will not be applicable. Otherwise, in all areas except these exempted areas, students will have to study Assamese language from class 1 to 10. तो अब इस न्यूज़ के ऊपर फिर एनालिसिस की गई है इस आर्टिकल में और बताया गया है कि दिस इज़ एक्सेसिव Assamese नेशनलिज्म, और ये असम के पॉलिटिकल या सोशल या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है. दिस कैन बी अ थ्रेट, दिस कैन बी अ डेंजर टू Assamese कल्चर, Assamese सोसाइटी एंड इवन ओवरऑल Assamese पॉलिटी. तो इस बात को ज़रा अच्छे से समझते हैं कि कैसे Assamese लैंग्वेज को इम्पोज करना या स्टूडेंट्स को Assamese पढ़ने के लिए बोलना कैन बी थ्रेट टू असम पॉलिटी, कैन बी थ्रेट टू असम कल्चर और सोसाइटी. सबसे पहले तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि जिस डाटा के बेसिस पे असम सरकार ने ये कानून बनाया है वो डाटा है द सेंसस ऑफ 1971 एंड सेंसस ऑफ 2011. अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1971 असम के अंदर लगभग 60% लोग ऐसे थे जो Assamese लैंग्वेज बोलते थे as their mother tongue, and now according to the census of 2011 now there are about 48% people who are having Assamese as a mother tongue. और इसके बेसिस पे आसाम गवर्नमेंट ने एक इन्फरेंस ड्रॉ किया है, एक कंक्लूजन निकाला है दैट द नंबर ऑफ Assamese स्पीकिंग पीपल इन आसाम हैज़ डिक्लाइन. और इस आर्टिकल में सबसे पहले इस इन्फरेंस को या इस कंक्लूजन को चैलेंज किया गया है या गलत सब बताया गया है. इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो, नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग Assamese एज देयर मदर टंग वो भले 48% है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आसाम के अंदर बस 48% लोग ही Assamese बोलते हैं. देयर आर अदर पीपल एज वेल जो जिनकी मदर टंग कुछ और है. फॉर एग्जांपल उनकी मदर टंग मिसिंग या रभास कुछ और हो सकती है, बट दे ऑल्सो स्पीक Assamese व्हेन दे आर इन पब्लिक प्लेस. तो दिस डेटा इज मिसलीडिंग, ऐसा इस आर्टिकल में स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि व्हेन दे से दैट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 48% पीपल हैव Assamese एज देयर मदर टंग. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 48% लोग Assamese बोलते हैं असम के अंदर. देयर आर अदर्स एज वेल हु हैव नॉन Assamese एज देयर मदर टंग बट they speak Assamese when they are in public place, in markets or any other place. So this inference is wrong कि number of Assamese speaking people is overall less than 50%. बहुत सारे लोग हैं मेजॉरिटी में जो लोग Assamese बोलते हैं भले उनकी मदर टंग कुछ और हो.
और फिर इस आर्टिकल में बोला गया है कि दिस काइंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एसएमीज लैंग्वेज इन असम विल हैव इम्पैक्ट ऑन अदर ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन इनसाइड असम। बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज हैं जैसे मिसिंग, ड्योरीज, राभाज, इनके ट्राइबल लैंग्वेज का भी अगर डेटा निकाल के देखा जाए तो पता चलता है कि ओवरऑल द परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीकिंग दीज लैंग्वेज हैव डिक्रीज्ड। और अगर इस तरह से एसएमीज को इम्पोज किया गया, इस आर्टिकल में लिखा गया है, देन ओवरऑल दीज ट्राइबल लैंग्वेज विल स्टीडली डिक्लाइन, ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सम ट्राइबल सच एज सोनोवाल, कसारी, टीवास हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटली लॉस्ट देयर लैंग्वेज। और आगे इस तरीके से अगर मेजोरिटेरियन आइडिया, अगर मेजोरिटेरियन लैंग्वेज इम्पोज किया गया तो ये सारे ट्राइबल लैंग्वेज भी धीरे धीरे हमारे स्टेट में ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमें समझना है, सबसे पहला तो मैंने आपको कल्चरल थ्रेट समझाया कि कैसे असमीज लैंग्वेज को इम्पोज करना, फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स पे फोर्स करना दैट यू हैव टू स्टडी असमीज, जैसा इस आर्टिकल में लिखा है, उससे बाकी सारे जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं वो थ्रेट में आ जाएंगे। सो दिस इज ए कल्चरल थ्रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम। अब जरा समझते हैं पॉलिटिकल थ्रेट क्या होगा इस डिसीजन का। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से, एक पास्ट फैक्ट की मदद से समझाने की कोशिश की गई है। और कि देखो, जब 1960s में असम की सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था असमीज ऑफिशियल लैंग्वेज बिल इन 1960। अकॉर्डिंग टू दिस बिल only 2 languages were to remain official language. One was Assamese and second was English, and that was also for interim period. तो सरल शब्दों में इस कानून के हिसाब से जो proposed बिल था उसके हिसाब से लॉन्ग रन में सिर्फ असमीज़ ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाला था असम के अंदर। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि जो लोग भी खासी एरिया में रहने वाले लोग थे, खासी ट्राइब के लोग थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट। उस टाइम में मेघालय वाज पार्ट ऑफ असम इटसेल्फ, लेकिन इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद ये खासी एरियाज़ में रहने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया दैट दे वांट टू हैव अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ असम, एंड अल्टीमेटली अ सेपरेट स्टेट मेघालय वाज क्रिएटेड। मोर और लेस द बोडो मूवमेंट for autonomy from Assam can also be related to this Assamese official language bill। अगर किसी एक लैंग्वेज को इम्पोज किया जाएगा कि यही ऑफिशियल लैंग्वेज है, सब लोग को यही बोलना है, यही पढ़ना है, तो जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं जो इस एरिया में रह रहे हैं, जो बाकी ट्राइबल्स हैं, नेचुरली उनके अंदर एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आएगी कि हमें असम से अलग हमारी स्टेट बना दो या हमें एक अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दो। सो दिस कैन बी अ पॉलिटिकल थ्रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ असम गवर्नमेंट ऑफ imposing Assamese language on entire Assam students। और उसके अलावा हाल फिलहाल में कुछ एक नई बातें भी निकल के आ रही हैं। ऐसी चर्चा में थी ऐसी बातें दैट द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू हैव अ सेपरेट लॉ जिसके हिसाब से एसएमईज विल बिकम कंपलसरी फॉर हैविंग गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपने मैट्रिकुलेशन तक एसएमईज पढ़ा है तब जाकर के आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी आसाम में। इस तरह की बातें चल रही थी। देखो, इस पर कोई भी कंक्लूसिव एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है, लेकिन इस तरह की बातें जरूर पब्लिक डोमेन में आई थी दैट द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग सच थिंग्स। लेकिन अब इस आर्टिकल में बोला गया है कि दिस इज़ एक्सेसिव होमोजेनाइज्ड असमीज नेशनलिज्म, और इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट होगा आसाम के अंदर। इट इज़ अ फोर्स्ड नेशनलिज्म ओवर आसाम, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग भी असम के अंदर रह रहे हैं काफ़ी ट्रेडिशनल टाइम से, हिस्टोरिकल टाइम से, सबका जो नेटिव लैंग्वेज है वो असमीज ही हो। देयर आर सो मेनी ट्राइबल पीपल हु हैव बीन लिविंग इन असम सिंस एंशियंट टाइम एंड दे हैव बीन इनहेरेंट पार्ट ऑफ असम, मे इट बी कल्चर, मे इट बी ओवरऑल ट्रेडिशन। और अगर असमीज उन पे इम्पोज किया जाएगा और उनको गवर्नमेंट जॉब से सेग्रीगेट किया जाएगा, देन देयर विल बी ह्यूज discontent, or that discontent will have negative impact on overall political stability of Assam, that will have negative impact on overall social fabric of Assam. This will create unnecessary tension and disharmony amongst the people, the tribals living in Assam itself. Those who have Assamese as their mother tongue, उनके against जो असम के हैं ट्राइबल्स हैं, उनके मन में एक डिसकंटेंट डेवलप होगा दैट दीज पीपल आर नाउ गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड। जो ट्राइबल्स हैं दे विल फील दैट दे आर गेटिंग discriminated. Such moves will alienate many of the linguistic identity groups such as Missing, Deoris, Rabhas। और इस आर्टिकल में अंत में बस यही कहा गया है जो आपको अपने आंसर राइटिंग में भी इस्तेमाल करना है कि the attempt to limit the definition of Akhomia just to speaker of Assamese language is not right. Akhomia is a culture
इट्स अ ओवरऑल ट्रेडिशन। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो असमीज़ लैंग्वेज नहीं भी बोलते हैं, बट स्टिल दे आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ असमीज़ कल्चर एंड दे शुड बी इंक्लूडेड इनटू इट। असमीज़ लैंग्वेज बोलना कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पर्सन इज अखोमिया और नॉट। The next article is taken from international segment. It is about Israel's annexation plan, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का देखो बैकग्राउंड समझते हैं। देखो इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं वो डिटेल में मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30 जून यानी कि द डे बिफोर येस्टरडे ऑलरेडी कवर कर दिया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि वेस्ट एशिया के अंदर जो मेजर कन्फ्लिक्ट इशू है वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टीन एंड इज़राइल। और पैलेस्तीन और इज़राइल के बीच में कंसिस्टेंट कन्फ्लिक्ट होने के कारण पूरा का पूरा वेस्ट एशिया अनस्टेबल रहता है। और इस कारण से ही इस साल जनवरी में ऑन 28 जनवरी 2020 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज्ड अ पीस प्लान नोन एज मिड ईस्ट पीस प्लान। और ये मिड ईस्ट पीस प्लान काफ़ी हद तक it was favoring or inclined in favor of Israel and it was against the interest of Palestine। और इस कारण से पैलेस्टीनियन लोगों ने इस मिड ईस्ट पीस प्लान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। आज आई टोल्ड यू एट दैट टाइम ऑल्सो, जब मैंने ये एनालिसिस डिटेल में की थी, कि अकॉर्डिंग टू दिस पीस प्लान अबाउट 30% लैंड ऑफ पैलेस्टीनियन वेयर टू बी acquired by Israel and that is why and overall Jerusalem city, that is very sacred city for Palestinian people, would be completely under control of Israel। और that is why Palestinian people had completely rejected this peace plan। Nevertheless, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया था in the month of June that on 1st July he will implement Mid East peace plan as proposed by US President Donald Trump on 1st July itself। तो इसके हिसाब से 1st जुलाई यानी कि कल Israeli armed forces were planning to enter into Palestine and capture about 30% of the area on which Israelis have settled illegally। तो ये न्यूज़ तो हमने ऑलरेडी देखा था। अब इस पे जो करंट डेवलपमेंट हुआ है दैट इज़ दिस ओनली दैट एज पर प्लान जो 1 जुलाई को एक्विजिशन होना था ऑफ पैलेस्टीन वो हुआ नहीं। इज़राइल के कैबिनेट मिनिस्टर ओफिर अकोनिस ने बताया दैट दिस प्रोसेस हैज़ बीन डिलेड फॉर द टाइम बिंग बट मोर और लेस दिस प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन लेटर पार्ट ऑफ जुलाई। तो इसी महीने ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन अभी के लिए 1 जुलाई को ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। उन्होंने कारण भी बताया कि क्यों ये प्लान को 1 जुलाई को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का। बोरिस जॉनसन ने रिक्वेस्ट किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर को और इजराइल के बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को टू नॉट गो विद दिस इजराइल्स एनेक्सेशन प्लान ऑफ पैलेस्टीन। उनका ऐसा मानना है कि अगर इजराइल ने इस तरह से पैलेस्टीन का 30% लैंड एक्वायर कर लिया देन देयर विल बी मोर डिस्टर्बेंस, मोर इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया एंड दैट विल डिवास्टेट एंटायर वेस्ट एशिया एंड इट विल क्रिएट अ सिक्योरिटी इशू नॉट जस्ट फॉर वेस्ट एशिया रीजन बट फॉर एंटायर वर्ल्ड। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के रिक्वेस्ट पे एक बार के लिए इजराइल ने इस एनेक्सेशन प्लान को हॉल्ट किया है, बट मोर और लेस द इजराइल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग दिस एनेक्सेशन प्लान वंस इट कन्विंसेस बोरिस जॉनसन। The next article is taken from national segment. It is about Central Jew Authority and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view। सबसे पहले इस आर्टिकल के से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ है वो समझते हैं। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल जू अथॉरिटी और अब इस सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर one member has been included from School of Planning and Architecture from Delhi and another a molecular biologist has been added। अब ये न्यूज़ अपने आप में I don't think is important from exam point of view but still I picked this article in order to help you understand about this authority जिसका नाम है Central Jew Authority। तो इसके बारे में समझते हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इट हैज़ बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच दिस स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ बीन क्रिएटेड इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और ये जो अथॉरिटी बनाई गई है सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसका मेन पर्पस है कि हमारे देश के अंदर जो भी जूस हैं, जो भी फंक्शनल जू हैं, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या नॉर्म्स होगा, क्या प्रोसीजर होगा एनिमल्स को हैंडल करने का, उन सब से रिलेटेड गाइडलाइंस बनाना और इन सारे जूस की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना।
कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जूस के अंदर, किस तरह से एनिमल्स को खाना खिलाना है, किस तरह से उनका टेक केयर करना है, कभी कभार एक जू से दूसरे जू में एनिमल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। द इंटायर प्रोसीजर इज़ taken care by and the guideline is laid down by the Central Zoo Authority, which is a statutory body under Wildlife Protection Act of 1972. अभी एक बार कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी समझ लेते हैं, क्योंकि इस साल न्यूज़ में तो हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए। देयर इज़ अ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी हु इज़ द इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो जो भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है ही और सी ऑटोमेटिकली बिकम्स चेयरमैन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। उसके अलावा देयर आर 10 मेंबर्स ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। जनरली ये जो मेंबर्स होते हैं दे आर रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स या इन्वायरमेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आर मेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब जो करंट न्यूज़ ये है कि 2 नए लोगों को ऐड किया गया है। 2 न्यू फेसेस हैव बीन एडेड टू दिस सेंट्रल जू अथॉरिटी एज मेंबर्स। वन इज मिस्टर PSN Rao, he is director of School of Planning and Architecture, Delhi, and second one is Karthikeyan Vasudevan. He is senior principal scientist of CSIR of Center of Cellular and Molecular Biology. The next article is taken from economy segment. It is about special liquidity scheme for NBFCs. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल on 20th May the central government had announced a special scheme for national non-banking financial companies and housing finance companies। और इस स्कीम के हिसाब से इन दोनों ही टाइप की कंपनीज़ को स्पेशल लिक्विडिटी फंड प्रोवाइड करने की बात की गई थी अकॉर्डिंग टू द डिसीजन मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन 20th May। एंड फॉर दिस पर्पस ए स्पेशल पर्पस व्हीकल हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड। और करंट न्यूज़ बस ये है कि आरबीआई ने पूरा का पूरा गाइडलाइन ले डाउन किया है कि किस तरीके से स्पेशल पर्पस व्हीकल फंक्शन करेगा फॉर दीज एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो इस न्यूज़ को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होगी, देन वी विल अगेन कम बैक टू दिस न्यूज़। सबसे पहले समझते हैं कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज होती क्या हैं। सो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, दे आर ए कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड दे आर इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ लोन्स इन्वेस्टमेंट लाइक बैंक्स। तो जैसे कि एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वैसे ही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। लेकिन इन कंपनीज का बिजनेस है लोन देना या किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना। सो मोर और लेस इन कंपनीज का बिजनेस जो एक्टिविटी है वो दैट इज़ लाइक ए बैंक ओनली। बैंक का भी तो काम यही होता है, लोन देना या किसी एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट कराना, किसी भी बोरोवर को लोन दे करके। सो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में उठता है दैट हाउ दीज एनबीएफसीज आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक। जब दोनों का बिजनेस एक ही है, लोन देना, देन हाउ दे आर डिफरेंट। सो पहला डिफरेंस है दैट बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज बैंक्स, वाइल एनबीएफसी इज अ कंपनी। तो एक एसेंशियल डिफरेंस है दोनों के नेचर में। बैंक्स are registered under this act while NBFCs are registered under this Companies Act of 1956. So they are a company while banks are known as banks. So these NBFCs cannot be called a bank, proper bank. उसके अलावा NBFCs cannot accept a demand deposit. They can only accept long term deposits. जबकि banks दोनों ही तरह के डिपॉजिट, डिमांड हो या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। NBFCs do not form part of payment and settlement system. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे चेक क्लियर करना, चेक इशू करना, ये सारा काम एनबीएफसीज नहीं करता, जबकि ये काम बैंक करते हैं। उसके अलावा एनबीएफसीज में डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल। सरल शब्दों में एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अंडर दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, कि आपका पैसा जो 5 लाख रुपए तक का पैसा जो आपने किसी भी बैंक में जमा किया है, दैट इज़ गारंटेड कि अगर वो बैंक डूब भी गया तो आपको 5 लाख रुपए तक तो मिल ही जाएंगे मिनिमम। आपने 10 लाख रुपए मान लो जमा किए हैं, तो अगर वो बैंक डूब गया तो कम से कम 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। 5 लाख इज गारंटेड, सरल शब्दों में बैंक के अंदर आपका डिपॉजिट। बट दिस टाइप ऑफ गारंटी इज नॉट अवेलेबल विथ योर डिपॉजिट इन एनबीएफसीज। उसके अलावा एनबीएफसीज कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई वाया रेपो ऑप्शन। तो कई सारे, देखो बस एक ही सिमिलैरिटी है बैंक में और एनबीएफसीज में कि दोनों का बिजनेस एक्टिविटी मोर और लेस सेम है, कि दोनों ही लोन देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। उसके अलावा दोनों में एसेंशियल डिफरेंस है, वन इज प्रॉपरली कॉल्ड अ बैंक वाइल एनबीएफसीज आर ए काइंड ऑफ कंपनीज। सो
अब एक बात तो क्लियर है दैट NBFCs आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स, बट स्टिल NBFCs आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम. मोर और लेस दे ऑल्सो मोबिलाइज फंड इन इंडियन इकोनॉमी. सो NBFCs आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी. एंड नाउ NBFCs आर अंडर स्ट्रेस. 2018 में एक मेजर NBFC जिसको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC का टैग दे रखा था RBI ने, जिसका नाम था IL&FS, that came under crisis, that is popularly known by the name IL&FS crisis in 2018 itself. उसके बाद से जब RBI ने क्लोजर इंक्वायरी की तो पता चला कि बहुत सारे NBFCs जो हैं दे आर अंडर थ्रेट. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि NBFCs आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो NBFCs को रिवाइव कराना इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. अगर NBFCs फेल हो गए तो भी इंडियन इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. और इस कारण से भारत सरकार ने ये स्कीम लेकर के आई. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, जिसका नाम है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम, नाउ NBFCs विल बी गिवन स्पेशल फंड ताकि उनको रिवाइव किया जाए, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए. और इस पर्पस के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया है भारत सरकार ने. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, तब अंत में देखेंगे कि स्कीम कैसे वर्क करेगा. देखो, स्पेशल पर्पस व्हीकल और SPV कैन बी क्रिएटेड इन एनी सेक्टर फॉर सम स्पेशल पर्पस. स्पेशल पर्पस व्हीकल फाइनेंशियल सेक्टर में भी बनाया जाता है या किसी और सेक्टर में भी, लीगल सेक्टर में भी बनाया जा सकता है. इसका नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, दे आर बीइंग क्रिएटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस. एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ. मान लो आपकी कंपनी है, कोई कंपनी XYZ, और इस कंपनी का आपको मार्केटिंग करना है, लेकिन आप उसके लिए अपनी कंपनी का नाम यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसी कंपनी के अंडर एक दूसरी कंपनी खोल देंगे जिसका नाम आप कुछ और रख देंगे, और उसको आप बोलेंगे कि दिस इज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका मेन काम है बस मार्केटिंग करना ऑफ माई कंपनी, माई पेरेंट कंपनी. सो इस तरीके से यू क्रिएट अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेशल पर्पस. और जब तक वो स्पेशल पर्पस होता है, काम चलता है, तब तक दैट इंस्टीट्यूशन वर्क्स. वंस दैट स्पेशल पर्पस इज फुलफिल्ड, दैट इंस्टीट्यूशन सीजेज टू एग्जिस्ट. सो आई होप दिस द टर्म स्पेशल पर्पस व्हीकल इज क्लियर. An institution created with a special objective. तो वैसे ही भारत सरकार ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है फॉर दिस पर्पस विथ हेल्प ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल का ऑब्जेक्टिव है कि NBFCs और हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रिवाइव करे, उनको एक्स्ट्रा लिक्विडिटी प्रोवाइड करे. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ इट विल वर्क. देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है भारत सरकार ने विथ हेल्प ऑफ SBI, और उस स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम है SBI कैपिटल मार्केट. और इसके अंदर भारत सरकार ने 5 करोड़ फंड डाला है एज ए इनिशियल कैपिटल. तो भारत सरकार ने बस 5 करोड़ डाला है. उसके अलावा RBI से ये स्पेशल पर्पस व्हीकल 30,000 करोड़ रुपए लोन लेगा बाय सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू RBI, एंड इट विल बोरो 30,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम RBI. सो ओवरऑल द फंड अवेलेबल विद दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल विल बी रुपीज 30,000 crore, and the same fund will be utilized by this special purpose vehicle to infuse and mobilize fund to NBFCs who are struggling. तो जो NBFCs या हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होगी, उनको ये फंड इन्फ्यूज कराएगा दिस स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड इस तरीके से ये स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम काम करेगा. The next article is taken from Assam segment. It is about issues related to GI tag for Gamosa, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture point of view. सबसे पहले देखो, इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिलने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले तो एप्लीकेशन फाइल करना होता है इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ GI. तो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालना होगा कि आई वांट दिस प्रोडक्ट टू हैव अ GI टैग. अगर रजिस्ट्रार ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद एक स्पेशल जर्नल होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जर्नल, उसमें आपके एप्लीकेशन को पब्लिश किया जाएगा और 3 महीने तक उस पब्लिकेशन को रखा जाएगा. और अगर 3 महीने तक आपके इस GI एप्लीकेशन के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, देन योर प्रोडक्ट जिसके लिए आपने एप्लीकेशन डाला है दैट कैन बी गिवन अ टैग ऑफ GI और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर. तो गमोसा को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग दिलाने के लिए
एक एप्लीकेशन फाइल किया गया था बाय एन एनजीओ जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट। और जब एप्लीकेशन फाइल किया गया तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेटर ने उस एप्लीकेशन के हिसाब से जर्नल नंबर 124 ऑफ जीआई में वो एप्लीकेशन को पब्लिश भी कर दिया। और अगर 3 महीने तक कोई उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता तो गमोसा को जीआई टैग मिल जाता। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट विच इज़ एन एनजीओ उसने एप्लीकेशन फाइल तो किया, लेकिन एक दूसरे इंस्टीट्यूशन ने जो असम की इंस्टीट्यूट है डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल ऑफ असम, उसने ऑब्जेक्शन रेज किया है अगेंस्ट द एप्लीकेशन फाइल्ड टू गिव जीआई टैग टू गमोसा। और इसने 6 ऑब्जेक्शंस, इट हैज़ रेज 6 ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट दिस एप्लीकेशन फाइल्ड बाय दिस इंस्टीट्यूशन। तो जरा देखते हैं कि किस किस ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं फॉर गिविंग टैग टू गमोसा। सबसे पहला ग्राउंड है कि देखो गमोसा एक जेनरिक वर्ड है, एक जनरल वर्ड है जो मिलता जुलता है बाकी सारे टर्म से, जैसे गमछा, गमूसा। और ये गमछा गमूसा इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में यूज किया जाता है फॉर द टर्म टॉवेल। तो हो सकता है कि आगे जाकर के कुछ कन्फ्यूजन हो बाकी सारे लोगों को, अगर अपने दूसरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉवेल इन बिहार इज़ नोन एज गमछा। तो अब अगर बिहार के टॉवेल को अगर जीआई टैग लेना होगा तो अगर वो गमछा नाम से वो अगर एप्लीकेशन डालेंगे, देन देयर विल बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन बिटवीन दिस गमछा एंड गमोसा जो असम ने रजिस्टर किया है, एक एप्लीकेशन फाइल किया है। तो क्या सजेस्ट किया गया है, द न्यू सजेशन हैड बीन कि रादर दैन गिविंग टैग टू गमोसा, ये एप्लीकेशन का ये है एक कॉपी है यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एप्लीकेशन नंबर 594 एंड एप्लीकेंट वाज इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। और किस नाम से जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन डाला गया है, गमोसा। और अपोजिशन रेज किया गया है दैट रादर दैन गिविंग इट ए जीआई टैग एज गमोसा इट शुड बी नोन एज एसएमईज गमोसा, ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके अलावा जो दूसरा ऑब्जेक्शन है दैट जीआई टैग बियर्स नेम ओनली इन एसएमईज। अगर आप ये टैग देखें, दिस इज़ द प्रॉपर टैग, जो भी ऑब्जेक्ट जो गमोसा के अंदर आएगा उसके ऊपर ये टैग लगा रहेगा इन ऑर्डर टू डिपिक्ट दैट इट इज़ अ जोग्राफिकली इंडिकेटेड प्रोडक्ट या फिर जीआई प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट। लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो जो गमोसा लिखा हुआ है दैट इज़ इन एसएमईज। और ये जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है दैट सेज कि गमोसा शुड बी रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एसएमईज टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। इंडिया भर में बाकी जगहों पर भी अगर इस प्रोडक्ट का अगर ये लोगों ने ये टैग देखा तो वो समझ जाएं फॉर मोर अवेयरनेस कि ये गमोसा है एंड इट इज़ ए जीआई प्रोडक्ट। उसके अलावा जो तीसरा ग्राउंड है दैट दिस जीआई हैज़ बीन गिवन अंडर क्लास 25, बट टॉवेल कैटेगरी के लिए तो क्लास 24 है अंडर जीआई, एंड दैट इज़ वाई ये जो पूरा का पूरा जीआई टैग की रिक्वेस्ट की गई अंडर क्लास 25, दैट इज़ रॉन्ग। इट शुड बी गिवन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 25, बट टॉवेल कैटेगरी इज़ अंडर क्लास 24। दिस इज़ ओवरऑल क्लोथ कैटेगरी. Cloth category is for class 25 and GI should not be considered as cloth, it should be considered under towel category which is class 24. So it should be registered under class 24. इस ग्राउंड पे भी इस एप्लीकेशन को चैलेंज किया गया. उसके अलावा अलग तरह का गमोसा जैसे कि गोसाई टाइप गमोसा हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन. पांचवा जो ग्राउंड है ऑब्जेक्शन का कि जो मैप है असम स्टेट का, इफ़ यू कैन सी दिस मैप ऑफ असम स्टेट, दिस इज़ आउटडेटेड. इसको प्रॉपर एक मैप डिपिक्ट करना चाहिए रिप्रेजेंटिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम. ये पांचवा ग्राउंड है ऑब्जेक्शन का. और छठा ग्राउंड है कि सिर्फ उन सारे मैन्युफैक्चरर्स को, गमोसा मैन्युफैक्चरर्स को हु आर रजिस्टर्ड और हु आर एसोसिएटेड विद दिस एनजीओ इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, बस उन्हीं द्वारा बनाए गए गमोसास को जीआई टैग मिलने का रिक्वेस्ट दिया गया है या फाइल किया गया है इन दिस एप्लीकेशन, विच इज़ नॉट राइट. असम के अंदर कोई भी गमोसा अगर बनाता है, इवन इफ दैट मैन्युफैक्चरर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद दिस एनजीओ, उसके भी प्रोडक्ट को गमोसा जीआई टैग के अंदर सेफगार्ड मिलना चाहिए. दैट इज़ द सिक्स्थ ग्राउंड ऑन विच कंप्लेन और ऑब्जेक्शन हैज़ बीन रेज्ड. और इन 6 ऑब्जेक्शंस के कारण अभी तक गमोसा को जीआई टैग नहीं मिल पाया है. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 494 to 496. Topic number 494 is about internet in flights. It is important to turn off electric devices when traveling in a plane to eliminate radio waves that pose a risk
to avionics technology on the plane. This is one of the reasons that travelers are asked to turn off electronic devices before takeoff. In December 2018, the Government of India announced the licenses for in-flight and maritime communication that allows broadband internet services while flying over Indian skies in sailing in Indian waters, both for international and Indian aircraft and vessels. The pilot in command may permit access of internet services while by passengers on board in flight through Wi-Fi signal. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 495 is about anchor investors. Anchor investors are institutional investors who are offered shares in IPO a day before the offer opens. As the name suggests, they are supposed to anchor the issues by agreeing to subscribe the shares at a fixed price so that other investors may know that there is a demand for the shares offered. No merchant banker, promoter or their relatives can apply for shares under anchor investor category. The anchor investor is not allowed to sell his or her share for at least 30 days after the allotment. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 496 is about pandas. Chinese red pandas are found in northern Myanmar as well as southeastern Tibet, Sichuan and Yunnan province in China, while Himalayan red pandas are native to Nepal, India, Bhutan and southern Tibet in China. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 491 to 493 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing the answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.